Hello students, today I am going to start the second chapter of geography, that is physical features of India. In this chapter what we have to study is let me write down the name of the chapter first. Physical features of India. What are physical features? Physical features are the features which are actually present on the earth's surface, which you can feel, which you can touch. Okay, that is physical, which is actually physically present, like our body, human body. Okay, we can touch it, we can feel it, it is physically present. Likewise, on the earth's surface, okay, we have various types of features, okay, which are seen and present on the surface. This is the earth's surface. What are those physical features? We can see mountains, we can also see what? Plateaus. Okay, plateaus. Then we find plains. So we find mountains, we see plateaus, we find plains. All these are features, and there are many more. Okay, we find rivers. Okay, we also find rivers which originate from the mountains. Okay, so these are various physical features which are found on the earth's surface. So today we will discuss only on three important topics which is present in this chapter, that is physical features of India. The first topic which we will discuss today in this chapter is the major physical features of India. So this is the first topic which we will discuss today, the major physical features of India. Second topic that we will discuss today is how these features or the physical features formed. How these physical features, whatever physical features, okay, that we will find on the earth's surface, how they have formed, okay, were formed. And the third topic that we will discuss today is, in brief, the theory of plate tectonics. Okay, it is very important theory, but in your syllabus we have to just go in brief, okay, just a brief understanding of what this plate tectonic theories says. Okay, so let me start with the first topic, that is this one. Okay, this one, the major physical features of India. So the major physical features of the earth, okay, the major physical features of the earth are, broadly we can say, mountains. Okay, mountains, you know, mountains. Then plateaus. Okay, plateaus are actually tabular land. Okay, tabular land. Then the plains are plain lands. Okay, level land, these are also called level lands. Plains, and mainly islands. Okay, islands which are surrounded by water from all the sides. You have seen in India also we have two major islands. One is Lakshadweep Island and the other is
Andaman and Nicobar Island. Lakshadweep Island is, Lakshadweep Island is located in Arabian Sea, and Andaman and Nicobar Island is located in Bay of Bengal. Clear? Now, the second question. What is the second question? The second question is how these physical features were formed on this earth surface. Okay, how these physical features formed. So how physical features came into existence. How? According to the earth scientist, okay, what the earth scientists say. Earth, you must have heard this word, earth scientist. Who are earth scientists? Earth scientists are those who study about the earth and its interior. Okay, we also call them geologists. So according to earth scientists, according to earth scientists, the formation of the physical features can be understood by the theory of plate tectonics. Now you must be hearing this term for the first time, no problem. We will just now discuss. Okay, we will now discuss about it. What is this plate tectonics? So what these earth scientists are saying, according to their research, what has been found out that if you want to understand how these physical features, these mountains, plateaus, plains, how these things evolved on the earth's surface, you have to understand the theory of plate tectonics, because the answer lies behind this. Okay, now before going into this theory, first try to understand what are plates. हम प्लेट में खाना खाते हैं, वो एक प्लेट होता है, लेकिन हम यहाँ पे उस प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्लेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेट which is lying just below the top layer of the earth surface. This is earth surface. So the plate which is just lying below the top layer. Which is the top layer of the earth surface? It is called lithosphere. Okay, and just below the lithosphere lies the semi-liquid formed layer. Okay, this is the layer which is in semi-liquid form. It is called asthenosphere. Okay, this lithosphere is actually not a single piece of layer. Okay, this lithosphere is not actually a single piece of layer, rather this layer is divided into plates, different plates. Okay, actually it is broken apart, it is not a single piece, it is divided into different plates. These are called plates, separately we call it plates. तो जो हमारा अर्थ का जो टॉप लेयर है लिथोस्फेयर, वो एक सिंगल पीस नहीं है, वो टुकड़ों में डिवाइडेड है. ओके, टुकड़ों में डिवाइडेड है. each of these pieces are called plates. Okay, each of these pieces are called plates. Okay, so we can define plates. What are plates? Plates are the solid crustal layers. Clear? This plate, okay, these plates are part of lithosphere, or we can say lithospheric layer,
Okay, these plates are part of lithosphere, which is 100 kilometer thick. Clear? So plates, what are plates? Plates are solid crustal layer. It is a part of crust. Okay, this is crust. This is crust. Okay, so plates are actually part of the crust. Clear? Plates are part of the crust. This is the top layer of the earth is crust. We all know. This is core. This is mantle. This is crust. Okay, in crust the top layer is lithosphere. Okay, lithosphere, and just behind the lithospheric layer lies a semi-liquid layer which is called asthenosphere. Okay, asthenosphere. So this layer is crust. So plates are part of the solid crustal layer. Clear this much? Then what it is saying? These plates are part of lithosphere, which is 100 kilometer thick. So this crust is 100 kilometer thick. Okay, this crust is 100 kilometer thick. Clear? This crust is also called lithosphere. Okay, then next is these plates move in horizontal. You know what is the horizontal movement? It can be in the, okay, like this. The movement is like this. Okay, like this. So the plates either move in horizontal direction as well as in vertical direction. Okay, vertical direction like this. Up or down movement, side by side movement. Okay, remember the plates are not only moving in this direction only, they are also moving upward and downward. Okay, so there can be both type of movements. Now due to this movement in the plates, what happens? There can be either movement apart, there can be movement towards each other. Okay, so the movement of the plates leads to stress, or tension, when they move apart. जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा और टेंशन क्रिएट होगा. ठीक है, सपोज ये एक प्लेट है. ओके, अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों तरफ से एक तरह का फोर्स क्रिएट होगा दो साइड. ओके, देन व्हाट विल हैपन? चलो पेन से एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये दो प्लेट्स हैं. ठीक है, दो प्लेट्स हैं. सपोज एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन? सडनली अ stress will be created and they will move apart. Okay, they will move apart. This is called stress or tension. Moving apart is called stress or tension. Okay, it is also called tensional force. Okay, tensional force means a force which leads to movement in two different directions. Okay, so suppose this is one plate, and in the same plate a force is being created on both sides. Okay, two different directions, opposite direction. What will happen? Automatically a kind of stress will be created in this zone. Okay, and
finally what will happen? They will break apart and move away from each other. Okay, this is called a kind of force which is also called tensional force. You don't have to go in detail, in depth. I'm just telling you. Okay, these will not come in exam, but it is important for understanding. Okay, clear? You will not be asked कि define करो plates क्या है. No, you will not be asked that define plate tectonics. I'm just explaining you. Okay, what is this plate tectonics theory? Why it is called plate tectonics? First you have to understand what are plates. Plates आपको समझ में आ गया? लिथोस्फेयर का जो टॉप लेयर है, क्रस्ट, सॉरी, अर्थ सरफेस का जो टॉप लेयर है, क्रस्ट, उसमें भी डिविजन्स है. उसका जो टॉप लेयर है उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर. एंड लिथोस्फेयर जो है एक्चुअली प्लेट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो लिथोस्फेयर है हमारा वो छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है और सभी जो है एक दूसरे से अलग हैं, जुड़े हुए दिखते हैं लेकिन वो टूटे हुए हैं. ठीक है, और हमेशा उनमें मूवमेंट चलता रहता है. हर प्लेट मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, सबका अलग अलग मूवमेंट चल रहा है. जब कोई दो प्लेट आपस में टकराती है तो वहाँ क्या होता है? एक तरह का एनर्जी रिलीज होता है. तभी हम अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करते हैं जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं. ठीक है, या फिर सपोज जब दो प्लेट या फिर एक ही प्लेट में दो तरह का फोर्स क्रिएट होता है, एक डायरेक्शन में और दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, तब क्या होता है? ऑटोमेटिकली मिडिल में स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो धीरे धीरे वो प्लेट जो है टूट जाती है मिडिल से. ओके, तो इस तरह का फोर्स क्रिएट होता है. तो जब फोर्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी उसको कहते हैं टेंशनल फोर्स. ओके, तो उससे क्या होगा? प्लेट्स जो है ब्रेक हो जाती है. दूसरा है, सो ये एक तरह का मूवमेंट है प्लेट्स का. अब एक और तरह का मूवमेंट प्लेट्स में होता है. द प्लेट्स ऑल्सो मूव टूवर्ड्स each other. Then what happens? This leads to folding of plates. Okay, तो यहाँ था कि फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा था. अब जो है फोर्स एक प्लेट में सिमिलर डायरेक्शन में काम करेगा. दोनों जो है फोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. यहाँ से भी एक तरह का फोर्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ से भी एक तरह का फोर्स क्रिएट हो रहा है. तो इस प्लेट पर क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली एक तरह का फोल्डिंग क्रिएट होगा प्लेट में. ठीक है, एक तरह की फोल्डिंग क्रिएट होगी और ये प्लेट जो है ऐसा फोल्ड हो जाएगा. और इसी फोल्डिंग के कारण हमारे अर्थ सरफेस में जितने भी माउंटेन्स बने हैं इसी के कारण फॉर्म हुए हैं. तो हम जो माउंटेन्स देखते हैं, चाहे वो हिमालयन माउंटेन्स हो, चाहे वो अल्पाइन माउंटेन हो या एल्प्स हो, जो भी हो, सबके पीछे एक तरह का फोर्स काम किया. और वो फोर्स कौन सा था? कंप्रेशनल फोर्स. इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल फोर्स. ओके, इस फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशनल फोर्स. जब टेंशनल फोर्स काम करेंगी तो दो प्लेट्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे और वहाँ पे एक ब्रेकिंग आ जाएगी. इसको क्या कहते हैं? फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा दो प्लेट्स के बीच में. लेकिन जब कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा तो क्या होता है? प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और वहाँ पे फोल्डिंग क्रिएट होती है. क्या होती है? फोल्डिंग क्रिएट होती है. अब आप अपने बुक में देखो कि यहाँ पे ये दो टर्म्स आए हैं. एक है यहाँ पे फोल्डिंग और दूसरा है फॉल्टिंग. अब समझ में आ गया आपको कि ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग कहाँ से आ गया? जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेगी तो वहाँ पे क्या होगा? फोल्डिंग क्रिएट होगी. और जब फोर्स एक दूसरे से अगेंस्ट, एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? फॉल्टिंग होगी, बीच में दरार आ जाएगी. फॉल्टिंग मतलब दरार. ठीक है, दरार आना, ब्रेकिंग हो जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना किसी चीज़ का. ठीक है, इतना समझ में आया? आई थिंक, आई जस्ट होप कि आपको इतना समझ में आया होगा.
तो ये था बेसिक्स प्लेट्स का, ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स को डिफाइन किया गया है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है वो उसके हिसाब से हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट ये 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लेट्स क्या होते हैं। और ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, ये इसको इसीलिए दिया गया है ये समझाने के लिए कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो एक सिंगल टुकड़ा नहीं है, सिंगल टुकड़ा नहीं है, वो डिवाइडेड है छोटे छोटे प्लेट्स में, ठीक है। ये छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है और ये प्लेट्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है, ये है पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट का जो मूवमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये देखो ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट जो है इस साइड है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न साइड में है। पैसिफिक प्लेट किस साइड मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, दिस इज एंटार्क्टिक प्लेट। सो टोटल वी हैव 7 plates, 1 2 3 4 5 6 7, okay, 7 plates we have, this one also included, मैंने एक को 2 बार काउंट कर दिया। So total 7 major plates. Apart from that we also have some minor plates like Cosco's plate, यहाँ पे है Cosco's plate, यहाँ पे है नास्का प्लेट, एक है फिलीपींस प्लेट, ओके, सैन एंड्रियास फॉल्ट यहाँ पे है। So these are all in detail and no need to go in detail, जस्ट इतना आप जान लो कि हमारे पास कितने प्लेट्स हैं। हमारा जो अर्थ सरफेस है, अर्थ क्रस्ट, वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ कि द थ्योरी ऑफ प्लेट TECTONICS tectonics says that our earth surface is made up of 7 major plates and some minor plates, okay. These 7 major plates are Pacific plate, North American plate, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप पूरा लिखना, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, okay, Eurasian plate includes Europe and Asia, okay, remember this. Then Indo-Australian plate, then Antarctic plate, okay, write completely, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, don't get confused. And कुछ minor plates भी है जैसे कि Cocos plate, then Nazca plate. It is not given in your textbook. I'm just telling you something extra, okay. अगर आप याद नहीं भी रखते हैं इसको तो कोई समस्या नहीं है, ये ज़रूरी है याद रखना इतना। ये 7 मेजर प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आते हैं थर्ड टॉपिक में। हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, हमने 2 चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली हैं। एक जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, क्या क्या है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया अब तक में कि ये जो फिजिकल फीचर्स जो फॉर्म हुए अर्थ सरफेस में, ये कैसे फॉर्म हुए, ठीक है, कैसे फॉर्म हुए, हमको पता चल गया ये कैसे फॉर्म हुए। ये अर्थ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है ये बताता है कि किस तरह से ये फीचर्स
फॉर्म हुए। हमारा अर्थ सरफेस का जो टॉप लेयर है, क्रस्टल लेयर, वो एक्चुअली छोटे और बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इनके मूवमेंट से क्या होता है, फोल्डिंग होती है एंड फॉल्टिंग होती है। ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर्स को क्रिएट करता है हमारे अर्थ सरफेस पे। फोल्डिंग होती है तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जब फॉल्टिंग होती है तो एक रिवर का ओरिजिनेशन होता है, या फिर वहाँ पे एक वैली का फॉर्मेशन होता है, वैली का फॉर्मेशन होता है, ये डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इन्हीं सब मूवमेंट्स के कारण हम अर्थक्वेक, वॉल्केनो भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि हमारे अर्थ सरफेस में कितने मेजर प्लेट्स और कितने माइनर प्लेट्स हैं। हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ओके। देन अब जान लेते हैं कि प्लेट मूवमेंट्स कितने तरह के होते हैं, ओके। जो प्लेट मूवमेंट्स होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स एक्सपीरियंस हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट मूवमेंट्स है, एक वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो पहला जो कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये नाम ऐसा इसलिए पड़ा है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज करना, ठीक है। कोई चीज़ आके मर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज, ओके। तो कन्वर्ज, जब कोई 2 प्लेट आपस में आके कन्वर्ज करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन 2 प्लेट्स, जब मैं प्लेट्स बोल रही हूँ तो मतलब समझ लेना कि वो क्रस्टल प्लेट्स की बात है, ठीक है, क्रस्टल प्लेट्स की बात है। प्लेट्स मूव टूवर्ड्स each other, they converge and form convergent boundary, ओके। अब इसको समझते हैं एक पिक्चर से। मान लो 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स है, ये प्लेट 1, प्लेट ए और प्लेट बी। अब दोनों जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस प्लेट का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं। जब फोर्स एक दूसरे की तरफ होता है तो प्लेट्स जो है पास आती हैं। पास आने के बाद क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कोलाइड कर जाती है, या तो चढ़ जाएगी उसके ऊपर और दूसरी प्लेट उसके नीचे चली जाएगी। अब जब कोलिजन होता है, 2 प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जो कोलिजन होता है वो किस तरह का होता है, ये हो सकता है कि एक प्लेट जो है डाउन की तरफ चला जाए और दूसरा प्लेट जो है उसके ऊपर क्लाइंब कर जाए, ठीक है, क्लाइंब कर जाए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेट नीचे की तरफ मूव करने वाला है, कौन सा प्लेट उसके ऊपर चढ़ने वाला है, कैसे पता चलेगा? ये हमें इसको समझने के लिए बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो प्लेट हैवी होगा वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लेट ए नीचे की ओर मूव कर रहा है, सबडक्ट इसको बोलते हैं, सबडक्शन, SUBDUCTION, सबडक्शन प्रोसेस, ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। एक प्लेट जो है सबडक्ट कर रहा है दूसरे प्लेट के अंदर नीचे की ओर। ये तब हो रहा है क्योंकि ये जो प्लेट है ये हैवी है एज कंपेयर टू प्लेट बी। ये प्लेट लाइटर है, इसी की वजह से ये ऊपर की ओर चला गया और प्लेट ए जो है नीचे की ओर कोलाइड कर गया, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ? कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये कौन सी बाउंड्री कहलाएगी? कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये बहुत ही सिंपल है। अभी आपने कन्वर्जेंट बाउंड्री समझ ली,
ठीक है। कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ज करना, आपस में आके मिल जाना। डाइवर्जेंट यानी कि एकदम उसका ऑपोजिट है, डाइवर्ज करना, एक दूसरे से दूर जाना, मूविंग अपार्ट। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर they diverge and form divergent boundary. ओके, तो सपोज दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जो फोर्स है वो दोनों को दूर लेके जा रहा है। सपोज ये प्लेट थोड़ा इसके क्लोज था, चलो इस डायग्राम को थोड़ा ठीक करते हैं। ये जो प्लेट था इसके थोड़े करीब था। जब फोर्स एक दूसरे से अगेंस्ट, अवे फ्रॉम ईच अदर काम कर रहे थे, तो इसी कारण क्या हुआ कि दोनों के बीच जो है दूरी और बढ़ गई, ठीक है, डिस्टेंस और बढ़ गया, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, फॉल्ट क्रिएट हो गया। तो जब जब फोर्सेस अवे फ्रॉम ईच अदर काम करेंगे तो दो प्लेट्स के बीच एक तरह का फॉल्ट या गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिज या कोई वैली का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस तरह की बाउंड्रीज में। तो जहाँ पर भी हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन चेन्स देख लो, वहाँ पे दो प्लेट्स कन्वर्ज किए थे, ठीक है, दो प्लेट्स ने कन्वर्ज किया था, तब जा करके आज हमें वहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस, बड़े बड़े डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई थी, इसके वजह से उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट फोर्स, जो कि काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में मेनली क्या होता है कि दो प्लेट्स पहले करीब आती हैं सामने, उसके बाद दोनों एक, ना ही वहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ना ही वो मूव अपार्ट करती हैं, सिंपली वो एक दूसरे से स्लिप पास्ट वन अनदर, ठीक है, जस्ट क्रॉस कर जाती हैं, पास आती हैं और मूव कर जाती हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। हम इसको डिफाइन कर देते हैं, व्हेन टू प्लेट्स स्लिप हॉरिजॉन्टली। रिमेंबर यहाँ पे मूवमेंट जो है वर्टिकल नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, नॉट वर्टिकल मूवमेंट, ओके। सो टू प्लेट्स स्लिप horizontally past one, ANOTHER, another, okay, one another, is called transform boundary, okay. Their forms transform बाउंड्री, ओके, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हम इसको एक छोटे से पिक्चर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि सपोज ये एक प्लेट है, प्लेट 1, और ये है प्लेट 2, बी, प्लेट ए एंड प्लेट बी, सॉरी मैंने ए और बी से मार्क किया है सबको, तो ए और बी मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। इसका फोर्स सपोज अपवर्ड डायरेक्शन पे काम कर रहा है, इसका फोर्स जो है साउथवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो दोनों प्लेट्स जो है जस्ट दे स्लिप पास्ट वन अनदर विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस और एनीथिंग और फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का आपको फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई फिजिकल फीचर, बस एक तरह का स्लिप पास्ट वन अनदर होगा। हो सकता है कि अगर जब वो दोनों टकराए हो उस टाइम पे किसी भी तरह का एक तरह का हलचल हुआ हो और उसके कारण एक माइल्ड अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या आया हो,
तो जहाँ पे भी आपको ऐसा हल्का या लाइट अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने को मिलता है, या हम सुनते हैं न्यूज़ में कि इतना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था जो कि बहुत माइल्ड था और उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे ज़रूर कोई दो प्लेट्स आपस में आकर मिली होंगी और जस्ट वो स्लिप पास्ट करके चली गई होंगी। तो जब वो स्लिप पास्ट करके जा रही होंगी उसी वक्त वो अर्थक्वेक या एक तरह का हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब ना वॉल्केनो कब एक्सपीरियंस होगा? सपोज जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब वो दूर जा रही हैं, मूव अपार्ट हो रही हैं एक दूसरे से, उस वक्त जो वहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ, और टेंशन क्रिएट होने के कारण वहाँ पे जो फॉल्टिंग आई, फॉल्टिंग के कारण क्या होगा, नीचे का जो मैग्मा ओके, मेंटल में अपर मेंटल लेयर में जो मैग्मा है उसको मौका मिल जाएगा बाहर निकलने का, और ऐसे केसेस में हमको यहाँ पे वॉल्केनोज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस मच। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अब तक में जितना मैंने समझाया है इसको अच्छे से आप पढ़ो, समझो, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो या कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लेकर के जाऊंगी, चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। इस क्लास में आज हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट इज़ योर मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, सेकेंड हाउ दीज फिजिकल फीचर्स आर फॉर्म्ड, और इन ब्रीफ हमने डिस्कस किया कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने प्लेट्स के बारे में जाना कि प्लेट्स क्या होते हैं, और उसके टाइप्स के बारे में जाना, और मेनली तीन तरह के प्लेट मूवमेंट्स के बारे में हमने जाना, माफ़ करिएगा, प्लेट मूवमेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों पे फोकस किया, एक प्लेट्स और दूसरा उसके मूवमेंट्स, किस किस तरह के मूवमेंट होता है। और इन ब्रीफ हमने जाना कि हमारे अर्थ सरफेस में कितने मेजर प्लेट्स हैं, हमारा अर्थ सरफेस जो है कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो आज का क्लास बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करते हैं आगे। थैंक यू।